And how this law idea came into the picture? गलती से. गलती से? How come गलती से? So very first, Rishikesh, tell me about your academic background and how this law idea came into the picture. Okay, I have to pursue law. ये कहाँ से आया? Okay. So I would firstly to say humbly thankful to the Manor Foundations, and I'm native from Amravati, and I did my 12th in HVPM Amravati in 12th music. Then I did BA Arts in music from Pune University. Then I shifted to the LLB. Okay. And how this law idea came into the picture? गलती से. गलती से? How come गलती से? It's like sir personal motivations about that. It came from the our our own running case in the sub district magistrate. So that's why I'm impressed from those particular arena of the court procedures and lawyers. So that's why I decided to become a lawyer. Mm-hmm. Okay. So because of personal, affairs at home, which was their legal affairs, you can say, right? Which was Yes. there at home, तो उसके वजह से you have thought of, okay, let's pursue law. Yes. Okay, okay. I mean, there is a coincidence also. We met at Dadar, okay, in Hmm. the restaurant, and I was having, my food over there, and he came, Rishikesh and like Dev sir, right, from you. I said yes, and luckily we met. And actually, what struggle Rishikesh has done, that will also he will be discussing. And this is the kind of a inspirational video, you can say. Along, I mean, you belong to vernacular medium or Marathi medium, Hindi medium, doesn't matter. Uh, Yes. it has to be like कि मुझे गोल अचीव करना है, ये मुझे करना है, like राइट. तो एक बार Yes. वो गोल सेट क्लियर है, देन यू कैन डू एनीथिंग. सो प्रोवाइडेड कि Yes. आपके अंदर वो जेलनेस होनी चाहिए. सो ऋषिकेश, टेल मी अबाउट योर सीईटी प्रिपरेशन जर्नी. और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड में, यू सेड कि यू कम फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड एकेडमिक बैकग्राउंड. Hmm. सो कैन यू ब्रीफ मी अबाउट दैट पार्ट? Not like that. Very interesting. I'm strongly interested in music. I'm playing so many types of instrument, singings like that. I like that. But that is my hobby. I'm not choosing this as a profession. So I am shifted in the music. I'm I am a native from the village levels. So at that levels is some backgrounds are totally different. Not essential, crucial things not important there. So that's why I decided to shift in big city like Mumbai, Pune. That's an opportunity to learn more. Okay, okay. Now you are, in which college? New Law College, right? London College, Which is New Law College in Churchgate, right? not Churchgate, Matunga Road. Okay, so New Law College, he is in New Law College, Matunga Road. Okay, Hmm. and you are in second year, right? Yeah. So after law, what is the plan? After law, I am strongly pursuing my practices Okay. and there are some opportunity to legal officer, legal field officers. So I am thinking about that also. Uh, and they have one exams, Indian Legal Service. Okay. So I'm preparing for that. Indian Legal Service. Yeah. Okay, okay. And you are, running some venture sort of a thing with the friend you said last time. What is that? Yes. You want to speak about it? Yeah, I would like to speak about that because I'm started my initial days with startup. I Hmm. done my internship in legal fields, law firms, and legal service authorities, government authorities. So that's how I experience. And one opportunities came to me, like recently AI started, new technology started. This technologies is an opportunity to every legal aspirants, legal student.
I take this opportunity and use as my startup. So that startup is increasing right now. I'm working on Aurangabad bench, Aurangabad High Court bench, Nagpur High Court bench, and Nagpur High Court bench. So I Wow. expand my networks. So that is my business model. कि I'm increasing my network. People coming to me. So that is a future planning कि मेरा लॉयर का करियर तो अच्छा बनेगा. Okay, okay. So exactly what you do basically, मतलब आपने what you do थोड़ा elaborate करोगे और डिटेल में? यस सर, कोर्ट में क्या होता है, जब एक केस फाइल होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती रहती है, केस को फाइल करने से ले तक, और उसको नंबर पढ़ने तक, जो फाइनल नंबर होता है हर केस का. तो हम एडवोकेट से वो काम लेते हैं, कोई सीनियर एडवोकेट रहते हैं, उनसे वो काम लेते हैं, और उस पूरे काम को करने के उनसे कुछ चार्जेस रहता है कि उनको उनका मैटर जो रहता है, कोई केस आ रहा है, कोई क्रिमिनल का केस है, तो फाइल कैसे होगा, उसका फाइलिंग का प्रोसीजर सब हम करते हैं. Okay. So basically, देयर I mean, you are working under some senior lawyer as a trainee. एज ए ट्रेनिंग. Okay. And you are getting certain pay for it, right? यस. Okay, okay. So, I mean, I mean, what is your venture name? सॉरी, पैडॉन. What is the name of the venture which you have started? एकेडमिया लीगल. Okay, so you started by how many people are there? मतलब आपने अकेले start किया? There are 3, 4 people you said last time. I'm a co-founder, and second two one is join after. Okay, okay. So overall, 3 people are there. Yes, right now. All are in the same college? No, no, no. One is Nagpur, and one is Siddharth Law College, Aurangabad. Okay, okay. One is Aurangabad, one is Nagpur, and you are in Mumbai. Yes. सही है. It's like a मिली-जुली भगत. So ये नागपुर से और औरंगाबाद से how I mean ये कांटेक्ट कैसे हुआ इनके साथ? Sir, I use the mostly social media. I don't like the social media, but I use in this particular field हम्म LinkedIn, Instagram, Facebook. हम्म So as per this, I conducted so many lectures in online mode. Uh, Recently, High Court as well as the Honorable Supreme Court started the online e-filing services. अभी जो सब केसेस जो फाइल होते हैं किसी भी कोर्ट में, वो ऑनलाइन तरीके से फाइल होते हैं. तो मैं हर महाराष्ट्र के कॉलेज में लेक्चर लेता था कुछ स्टूडेंट को लेकर, उनको समझाता था कि कैसा कैसा प्रोसीजर है. तो वहां से स्टूडेंट जुड़ते गए, उनके कॉन्टेक्ट्स मिलते गए, और थोड़ा सा उनसे भी रिलेशन अच्छा बना. तो ये पूरा का पूरा ये तैयार हुआ. सेशन लेना मतलब कौन से ईयर के बच्चों का? मतलब यू आर इन द सेकेंड ईयर, तो ये सेशन कौन से बच्चों का लेते थे? Final year, first year, everyone is interested in these sessions, so I conducted this. ओके ओके. सो बेसिकली यू वेर टेकिंग द लेक्चर और उस या लेक्चर में क्या कवर करते थे बेसिकली? बेसिक में कोर्स में क्या क्या होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि कोर्स में क्या चल रहा है एक्चुअली, कोर्स में सीखना क्या है ये भी नहीं पता होता है, 3 साल वेस्ट जाते हैं क्योंकि. बेसिकली प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द केस जो है यस. स्टेप्स. यस. ओके ओके. सो ओके ग्रेट. या कंटिन्यू कंटिन्यू. सो काफी इट्स अ वेरी. या काफी इंटरेस्टिंग होगा. बाकी जितने भी व्यूवर्स सुनेंगे उनको समझ में आएगा थोड़ा कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में फर्क है ना? जो हम बुक में पढ़ते हैं सीरियस. जो हम एक्चुअल में करते हैं बहुत फर्क है. यस, डेफिनेटली. बिकॉज कैसे होता है, जो इनिशियल अपकमिंग लॉयर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कोर्ट की प्रोसीजर्स कैसी होती है. तो हमारे साथ मेरे कुछ सीनियर लॉयर्स भी जुड़े रहते हैं, वो ड्राफ्टिंग कैसे करना है वो भी सिखाते हैं, हम लेक्चर्स भी लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसा है, हाउ टू ड्राफ्ट. अभी समझो कोई केस आया है, पिछली बार हमारे पास एक केस आया था कि साइबर लॉ से चीटिंग हुआ था एक XYZ पर्सन के साथ. तो हमारे सीनियर्स क्या बोलते हैं कि ये केस आया है, इस पे आप रिसर्च करो, कौन सा भी अ, एक तरीके से आप एक माइंड मैप बनाओ और ड्राफ्ट बनाओ, मुझे सब केस लॉज ला के दो, जो भी केसेस आएंगे, पिछला क्या हुआ था, इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स थे क्या, जिस बंदे ने ये किया उसकी प्री हिस्ट्री निकालो, मतलब जो उसने क्या क्या किया था, कौन से मोबाइल यूज किए थे, सब हिस्ट्री निकलती है. क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर चाहिए कोर्ट में कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ. तो ये सब इंटरेस्टिंग रहता है नए नए सीखने वाले लोगों के लिए. ओके ओके.
आइडली हम मूवी देख के इंस्पायर होते हैं, जॉली एलएलबी देख ली, आर्टिकल 370 देख लिया, है ना? तो यस। करके हम थोड़ा इंस्पायर होते हैं, हाँ यार अपन भी बनेंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे, है ना? लेकिन अब ये सपने में नहीं होता है, वहां पे जाओगे तो सबकी बत्ती गुल हो जाती है। सो अभी तक का मोस्ट डिफिकल्ट फेज वर्किंग वाइज क्या रहा है, मतलब अभी जो सीखने को मिला कि हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा, या? In the criminal case, it's a it's a interesting as well as a very tricky and hectic also. Like recently, I got a one case NDPS narcotic case. So it's a very hectic because which every point is quoted there. बिकॉज क्या रहता है, नारकोटिक्स में बेल नहीं मिलती है। अगर आप थोड़ी सी भी चूक करते हो तो आपको बेल रिजेक्ट की जाती है। हम्म हमारे हमारे एक सीनियर्स थे जो कोर्ट में अपियर हो रहे थे, उनके इसमें सिर्फ एक जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो प्रेजेंट नहीं था, तो सीनियर जज थे, उन्होंने बेल कैंसिल कर दी। तो हम्म ये होता है कि जरा सी भी चूक हुई तो पूरे सिस्टम पे ये आता है। तो यहाँ पे जो काम करने की प्रोसीजर रहती है, तो वेरी हर्टली एंड वेरी थॉरोली करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट आपके गले पे आके बैठेगा। हम्म। ओके ओके। सो ऑल द टाइम यू ट्रैवल टू औरंगाबाद, नागपुर, या कैसा होता है, या रिमोटली काम होता है? No, I am only travel to the Delhi Supreme Court and the only Bombay High Court. ओके, But other teams are working in the Maharashtra. ग्रेट। सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि हर, समझो कोई सीख रहा है नागपुर में, समझो कोई सीख रहा है अमरावती में, कोई पुणे में सीख रहा है, तो वहां के कॉलेज से जो क्यूरियस बच्चे हैं, जिनको सीखने की कुछ इच्छा है, उनको हमने पकड़ा है और उनको ये काम सौंपा है कि नहीं आप करो, आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि बट या कंटिन्यू कंटिन्यू। यस, सो यहाँ पे कैसा होता है, जब लोगों से कांटेक्ट होता है तो ही अपने को काम मिलेगा। क्योंकि लॉयर्स का प्रोफेशन कैसा है, कोई ऐसे ही काम नहीं देता, जुबानी काम देता है। जैसे हम जुबान से बोलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तभी काम मिलता है। क्योंकि मैंने एक बार, मुझे ये हुआ था, मैं एक टैक्सी वाले से मिला था, जस्ट आई एम गोइंग ऑन द ट्रैक अरे। टैक्सी। सो उनसे बात करते करते उनको लगा कि नहीं ये बंदा करेगा, तो उन्होंने मुझे काम दिया था, लेकिन उनका कमीशन भी उन्होंने लिया था। हर एक वाह। का कमीशन देता है। वैसे हम भी काम करते हैं कि कोई केस आया तो हम सीनियर के पास लेके जाते हैं, सर हमारा इतना इतना कमीशन रहेगा। ओके। प्लेस सबका रहता है, क्योंकि एक एडवोकेसी इज लाइक अ बिजनेस। हम्म क्योंकि ये ये बिजनेस है, क्योंकि हम काम नहीं करेंगे अभी से, ये सब चीजें नहीं सीखेंगे। एकेडमिक करियर इज वेरी गुड, वो होना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इज डिफरेंट। दिस इज 10%, 90% इज प्रैक्टिकल नॉलेज। वहां पे क्या होता है, लोगों से कैसे मिलना है, लोगों से कैसे बात करना है। वन ऑफ द टाइम की एक क्लाइंट मेरे पास आया कि रो रहा था, सर मेरा घर बार भी चला गया, मतलब बैंक वालों ने ले लिया, तो मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो हाँ, उस टाइम हमने कुछ उनसे लिया नहीं, कुछ कुछ नहीं किया। उनका केस लिया और उनको पास करवा के दिया। फिर मेरे दोस्त ने बताया कि वो नीचे गया, फिर गाड़ी में कार में जाके बैठा था, फिर उसके बाद सब कुछ लूट गया, तो उसके बाद पैसा कैसे आया। तो हम्म। इतना तो इमोशनल भी करते हैं क्लाइंट, क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान क्लाइंट ही होता है, उसको सब जगह घूम के आता है। सो अच्छा। दैट्स द थिंग कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए, सीखना चाहिए कि वहां पे क्या होता है, लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। हम्म। और कोर्ट में ये भी रहता है कि कभी कभार आप कोर्ट में जाते हो तो एडवोकेट्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, कब कौन से मूड में जज साहब अच्छी ऑर्डर देंगे नहीं देंगे, क्योंकि उनपे मूड पे भी डिपेंड रहता है। उनका हम्म। मूड खराब है तो ऑर्डर भी नहीं देंगे, तो ये भी रहता है। ओके। सो नाइस। You are in second year of your law, and along with that you are working. So monthly, what is the earning of yours approximately? Approximately is much better. Right now I'm not quoted, but it's a good, because right now I'm working hard first my initial days, because at that time Total I'm 20 not thirty charging. thousand per month हो जाता है? It's more, it's double. Okay, almost 50 60,000 per month. Very nice. Yes. It is Yes. individual of yours, या बाकी जो दो लोग और साथ में काम कर रहे हो? नहीं, वो सबका निकल के।
अच्छा, तो मतलब इंडिविजुअली यू आर अर्निंग 40-50 के आसपास, Yes. which is very good actually में यार. न्यू लॉ कॉलेज, I mean you are in second year and you know started working, which is very good. Thank you, sir. It's So a very interesting, sir. hmm? It's a very interesting pleasure because आप पहले से ही सीखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एडवोकेसी में जो न्यू कमर्स होते हैं उनको काम तो नहीं मिलता है क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है, ऐसा बोला जाता है। Mm-hmm. तो ये इनिशियल डेज में ही रहा तो बहुत सही रहता है। So you started from first year only. फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब से किया था मैंने। Okay, मतलब you are, I mean since graduation only you have started all this thing. यस, यस। बट लॉ के अंदर ये भी होता है कि क्लाइंट के साथ भी कभी केस यू सॉल्व बट क्लाइंट डोंट पे और दे क्रेबल टू पे. यस, होता है। मतलब कैसा होता है कि आप काम करो, काम पैसे ही नहीं देते, भाग जाते हैं। हम्म. मतलब वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते हो ना आप। तो पहले ही स्ट्रेटेजी रहती है कि आप क्या करो, आपके आपने केस फाइल किया कि तू भाई कुछ भी कर, तू मेरे को पैसे लाके दे, मैं तभी तेरी फाइल पढ़ूंगा, तभी तेरे डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा। दैट्स द स्ट्रेटेजी, कि वो लॉयर्स की स्ट्रेटेजी रहती है कि आप कैसे सीखते हो। तो अपने पे रहता है कि हम किस तरह से हैंडल करते हैं क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट इज अ वेरी डेंजरस पर्सन, वो कैसे आपको घुमाएगा। सो दैट्स व्हाई। इंटरेस्टिंग यार. मतलब आ, घर में इशू थे, कुछ लीगल लीगल इश्यूज थे, उससे यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन लॉ एंड अब नाउ यू आर लाइक अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ सैलरी और मजा भी आ रहा है. पैशन मतलब फॉलो भी करो, पैशन भी म्यूजिक में हो आप, दैट इज आई मीन दैट इज अगेन यू आर डूइंग राइट along with your job. So, which is again good thing. All the aspirant, those who are watching my this podcast, if you are preparing for the CET or the whichever colleges you are targeting, ठीक है, या कॉलेज में जाने के बाद ये सारी चीजें जो अभी ऋषिकेश ने डिस्कस की, अगर आप ये कर रहे हो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट मीट विद द पीपल, यू विल नॉट मीट विद द सीनियर्स और द इंडस्ट्री में थोड़ा आप प्रैक्टिकली काम नहीं करोगे, यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग कि ये ओवरऑल फर्म वर्क कैसे करती है एंड हाउ यू विल बी बिल्डिंग योर करियर इनटू दिस लीगैलिटी, राइट. तो वो एक अच्छी ये वीडियोस मुझे लगता है कि थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि लोगों को प्रैक्टिकल चीजों का नॉलेज ज्यादा होगा. आइडली एक और मुझे पूछना था कि जब भी सीटी प्रिपरेशन चालू की होगी तो जीएलसी आईएलएस के बारे में सोचा होगा, राइट? हाँ, जेएलसी सोचा था, लेकिन वो लास्ट में लगा। फिर तब तक मैं एनएलसी के पैर में पड़ गया था कि जो लॉ कैंपस वगैरह थोड़ा देख के वो कोई डिसाइड कर लिया, फिर आई एम रिफ्यूज टू जेएलसी। अच्छा, जीएलसी मिला था बट यू स्किप दैट एंड यू वेंट फॉर द लॉ कॉलेज लास्ट में. कॉलेज। सही है यार. फिर तो ऐसा फील हुआ यार, ऐसा नहीं हुआ कि यार ये वाला कॉलेज जीएलसी मिलता, आईएलएस मिलता तो ज्यादा करियर मेरा बेटर होता कंपेयर टू लॉ कॉलेज? Not matter, sir. College not matter. What you do in your practical training, it's matter. ओके. Because what happening कि आपको कॉलेज में आप टॉपर रहते हो, लेकिन मोस्टली आई आई लुक द वेरी वेरी सीनियर्स कि वो क्या बोलते हैं कि हमको कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। एक ही मेरे सीनियर ने ऐसे भी बोला था कि उनको इंग्लिश नहीं बोलते आता है बराबर, तो उनको जज ने कोर्ट से भगा दिया था कि जस्ट यू आर नॉट कैपेबल टू बिकम अ लॉयर, you are ओके. not capable for the court officer. ओके. So so उन्होंने अभी 3 रिपोर्टेबल जजमेंट निकाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि आप अपने सैक्रिफाइसेस को, अपने दर्द को कैसे निकालते हो, वो जरूरी रहता है। आणि कॉलेज में कैसा रहता है, कॉलेज आप एकेडमिक्स को अच्छे बेटर बना सकते हो, लेकिन ये जो जॉब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बहुत बेस्ट रहता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जितना रहेगा, जितना प्रैक्टिकली सीखोगे, उतना बिल्डअप होते जाएगा। बट मुझे बट आई पर्सनली फील कॉलेज के साथ साथ दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. कॉलेज का एक यस, नाम भी मैं जीएलसी आईएलएस हूँ और फिर ये आप जो कर रहे हो और ये भी आप कर रहे हो, तो एक नेटवर्किंग तो अच्छी मिलती है कॉलेज के अंदर यस, एंड उसके बाद जो एक्सपोजर वगैरह है वो सारी चीजें, और यस, कॉलेज के अंदर का जो एलुमिनाई नेटवर्क वगैरह है, ये सारी चीजें एंड प्लेसमेंट डेफिनेटली। होती है. सो यस, जो भी चीजें अभी तक आपने की, वॉट एवर यू हैव डन सो फार, लाइक द जॉब विच यू आर डूइंग, राइट, उसमें कॉलेज कहीं हेल्प किया या यू हैव हंटेड बाय योरसेल्फ? my college is too good, and I like the very much. I like very much my all all college staff, all college teachers are very good. Uh, I know I doesn't know anything about the various types of authorities, legal offices there.
So my principal is one of time meet me and said कि Rishikesh, you join the district legal service, go there because you have a very best opportunities there. कि वहाँ पे कैसा रहता है, आप लोगों के साथ काम कर सकते हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज रहती है, आपको हम्म क्लाइंट को हैंडल करने के लिए भी मिलता है. हम्म तो उन्होंने बोला था कि आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे काम करो. ओके ह्यूमन राइट्स में भी काम किया था. फिर ओके देर हैव अपॉर्चुनिटी की मंत्रालय में भी काम करो, वहां पे भी पॉलिटिकल नेटवर्क बनेगा. तो ये सब बताते हैं कि उनका कैसा रहता है कि क्यूरियस बच्चा कितना है, वो वैसे उसको गाइड करते हैं. कि कॉलेज का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आप कैसे पूछते हो उनसे, कैसे राय लेते हो, वो बहुत जरूरी है. ग्रेट ग्रेट. सो अगर सो ऑल द व्यूअर्स, किसी को कुछ डाउट है लीगल वाला तो यू कैन कांटेक्ट ऋषिकेश. ठीक है, लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे यू आर देयर राइट, यू कैन फॉलो इंस्टा. ठीक है, एंड ऋषिकेश विल बी गाइडिंग यू, बट ही इज डूइंग गुड जॉब. मतलब सेकंड ईयर में आके व्हाट ही इज डूइंग विच इज वेरी गुड, और सेम चीज वी कैन लर्न फ्रॉम ऋषिकेश. जितने लोग फर्स्ट ईयर वाले हो या सेकंड ईयर वाले हो या थर्ड ईयर वाले भी हो, यू कैन आई मीन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग. और सब लोग करते भी है, जीएलसी वाले बच्चों से भी मैं बात करता हूँ तो दे आर डूइंग द सेम थिंग. आई थिंक उनकी जो अर्निंग का मॉडल है दैट आई डोंट नो व्हाट दे आर अर्निंग एंड ऑल, बट ठीक है, आप प्रैक्टिकली उतरते हो तो आप गलतियां करते हो, सीखते हो. गलती करना इंपॉर्टेंट है ना. यस. यस सर. सो सीईटी की प्रिपरेशन पे आते हैं, तो सीईटी की प्रिपरेशन में क्या रहा एग्जैक्टली, कैसी रही जर्नी. ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि आई एम जस्ट सडनली डिसाइडेड. So last 2 months I prepared only just watching the Manoeuvre's lecture. I totally depend on the Maneuver. So, so it's a miracle for me. I am pass. वाह. So yes, uh, इतना प्रैक्टिस की थी बहुत. प्रैक्टिस को मॉक क्वेश्चंस देना, ये तो जरूरी रहता है कि मॉक क्वेश्चंस हो. एंड एट दैट माय टाइम पेपर वाज टफ. हम्म. I'm preparing for. I'm aware about the exams, every exams also. I study lot, but at that time, paper is something हम्म something difficult हम्म. because current affairs is very difficult at that time. So in the out of the box, so that's just difficult to be taking a more marks. ओके ओके. सो जितने भी अपकमिंग ईयर के एस्पिरेंट है ना, जितने लोग अभी प्रिपेयर करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, या Hmm. जब भी पॉडकास्ट से देख रहे हैं, उनको व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव देम इन टर्म्स ऑफ So द प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ द जब लॉ कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तब, दोनों केस में क्या love, करना चाहिए. yes. सर मैं उनको ये तो बोलना चाहूंगा कि आप आपके आपके अंदर कुछ भी खामियां हो ना, उसको बाहर निकालो. आपके अंदर के बंदर को बाहर निकालो, जो कि कुछ भी चीज करने के लिए काम ये रहे, खड़ा रहे. जब मतलब मेरे कॉलेज में कुछ भी हो कि ये काम है, कौन करेगा, तो आई हैंड अप, सर मैं करूंगा. इट शोज लाइक ए लीडर. आप डरोगे नहीं कभी. कुछ भी हो कि कल्चरल प्रोग्राम्स होने वाला है, मूड कोर्स होने वाला है, कौन अरेंज करेगा, सर आई डू दिस. कल अभी हमारे कॉलेज में बोला था कि हमने किया था कि हमको इलेक्शन करवाने थे कॉलेज में हम्म क्लास मॉनिटर्स के लिए. तो हम्म मैंने बोला मैम आप बैलेट बॉक्स रखो, सबको वोटिंग करने दो. तो ऐसा हमने अरेंज किया था, लेकिन मैम ने इंडिपेंडेंटली वर्किंग कमेटी बनाई ड्यू टू द सम रीजंस. लेकिन आप ऐसा करते हो तो आपके स्किल बिल्डअप होते हैं. दैट्स एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी. हम्म कि one of the time I'm sitting in the courtroom, our chambers, and I'm just writing some lyrics of my songs. I'm just singing also. So that's so many types of books. One of the sides medical termination acts, big case laws, and big books. And हम्म one of the senior lawyers. It's a great lawyers in the Indian context. उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो बेटा, तो मैं डर गया, मैंने बुक्स छुपा दी थी थोड़ी. तो बोले दिखाओ मुझे क्या कर रहे हो. तो उन्होंने देखा भी और बोला कि मैं भी लिरिक्स लिखता हूँ बॉलीवुड के लिए, ये आप हम्म करो. क्योंकि हम्म उन्होंने बात बोली कि आप जो कर रहे हो, आपकी जो ये जो स्किल्स है, ये आपको जीने के लिए मदद करेगी. और आपकी जो लॉ का प्रोफेशन है, ये आपको पेट भरने के लिए मदद करेगा. तो आप ये जारी रखो. करेक्ट तो करेक्ट. वेरी गुड. most of the seniors in the courts,
इज लाइक खड़ूस, सब लोग खड़ूस बोलते हैं, लेकिन उनको मिला तो ऐसा लगा कि मानो दिल गार्डन गार्डन हो गया। हम्म तो ऐसा रहता है। आप हम्म आप बाय प्रोफेशन भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं शादी में भी जाता हूँ तो हम गाना भी गाते हैं, जस्ट लाइक ओपन थिंग। हम्म वहां से लोग आते हैं हमारे पास कि आप, हाँ लॉयर हो आप, तो हमारा ये केस है, तो वो भी सलाह लेते हैं कि हाँ हाँ। तो ये आपको एक ओवरऑल मदद करेगा। कहीं पे आप स्पीच दे रहे हो, तो कहीं पे आप कुछ और कर रहे हो, तो लोग आपके पास आएंगे नहीं, लॉयर हो के ये सब भी कर रहा है। हम्म मार्केटिंग का एक जरिया रहेगा, नॉट लाइक। हर जगह रेफरेंस छोड़ दिया है यस, यस। कि किसी को कुछ हुआ तो कॉल करेंगे, लीड आएगी वहां से, नहीं? जाएगी वहां से। ओके। अच्छा, कॉल नीम लॉ कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट का क्या ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स है? कॉलेज लेवल पे तो प्लेसमेंट्स नहीं है, लेकिन आप इंडिविजुअली कर सकते हो। आउट द कैंपस जाके कॉलेज में, आई मीन, जॉब ढूंढना रहेगा, राइट? यस, यस। कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट कमिटी वगैरह या कोई कंपनी नहीं आती है? ओके, बट दिस थिंग इज देयर इन द आईएलएस एंड द जीएलसी। जीएलसी ओनली। तो मतलब व्हाट यू थिंक, ये आपके लिए ड्रॉबैक है या व्हाट यू थिंक? नॉट अ ड्रॉबैक, बिकॉज आप कंपनी में जाते तो बंधे रहोगे, कभी एक चार दीवारी में बन जाओगे, बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा, क्योंकि आई एम। कंपनी भी तो भेजेगी ना बाहर फील्ड वर्क के लिए, जो भी काम कर रहे हैं। हाँ, इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, समझो आप कॉर्पोरेट लॉ फर्म ज्वाइन करते हो, हम्म ठीक है, कॉर्पोरेट फी का कोई वर्क करते हो, तो मोस्टली इनिशियल डेज में आपको इतना सीखने को नहीं मिलेगा। तो अभी अभी मेरे मेरे एज में अगर मैं किसी कॉर्पोरेट लॉयर्स को ज्वाइन करता हूँ इंडिविजुअली, हम्म 2 साल सीख के मैं खुद का भी चालू कर सकता हूँ। और कॉर्पोरेट लॉ लॉ का कैसा रहता है, समझ, कोई कंपनी 8 लाख 12 लाख का पैकेज देगी, लेकिन आप कॉर्पोरेट लॉ में खुद की लॉयर स्टार्ट करते हो इनिशियल डेज में, तो पर पर मैटर आपको 2 लाख 3 लाख रुपए मिलेगा। तो इट्स बेटर फॉर दैट ना, इज हम्म। माय कंटेक्स्ट इन द माय अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। कि दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन माय माइंड। हम्म। इतना बारीक सोचता हूँ कि ये अच्छा रहेगा ना, ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो हम्म। दैट्स नॉट अ ड्रॉबैक, इट्स अवर प्रेजुडाइसेस टू थिंक कि कंपनी ने ले लिया तो ये हो गया, नॉट लाइक दैट। सो ओके, सो व्हाट वी कैन से हेयर कि कॉलेज ठीक है मिल गया, बट उसके बाद अपनी एबिलिटी भी एक होती है। व्हाट एबिलिटी वी पीपल हैव एंड कितना हम एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है मार्केट में, घूमने के लिए रेडी है मार्केट में, ठोकरें खाने के लिए रेडी है, सीखने के लिए यस रेडी। सर। ठीक यस, है। यस। मार्केट से बेटर तो कोई सिखाएगा नहीं, है नहीं, ना? नहीं। तो इफ यू आर ओपन फॉर दिस तो फिर ठीक है, यू विल बिल्ड अप योर ओन रोड मैप, है ना? एंड यू विल बिल्ड समथिंग गुड, समथिंग डिफरेंट मे बी। और अगर कॉलेज में हो तो एक एड ऑन हो जाता है कि हाँ चलो कंपनियां आ रही है, प्लेसमेंट मिल रहा है, उसके बाद अगर कुछ अच्छा कर गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कंपनियां आ रही है जॉब देगी वगैरह वगैरह, राइट? यस। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ऋषिकेश, अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन फॉर द डे। Yes, sir. I would like to talk about the motivations about the student, because in the law field we think कि पहले आया था कि लॉ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पैसा कमाने को मिलेगा, ऐसा लगता है, लेकिन हम्म कब जाओ तो सीनियर खड़ा भी नहीं करता है। ऐसा होता है कि हम्म। हर बच्चों को लगता है, वो डिस ये हो जाते, थोड़ा डिस्परेट हो जाते हैं इसको लेके, कि आप करते रहो। मैंने 2 महीने शुरू के सिर्फ ब्रीफ्स उठाई है सीनियर्स की, सिर्फ ब्रीफ्स, लेकिन डायरेक्टली कोई नहीं समझाएगा आपको, कि मेरे घर से कोई भी लॉयर्स नहीं है, मेरे पिताजी फार्मर है, शादी से खेती बाड़ी करते हैं, कोई सिखाएगा नहीं आपको उठा के कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा आप करो। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सी चीज पे क्या बोल रहा है, ये सब चीजें आप ऑब्जर्व करो, तो सीख जाओगे आप, क्योंकि कोई नहीं सिखाएगा। नोबडी केम टू यू कि हाँ ऐसा है भाई, तू ऐसा ऐसा कर। आप ऑब्जर्व करो, हर हर एक को, हर चीजों को ठोकर खा के समझो, समझो और चलो। Great, great. So all the future lawyers, those who are watching this podcast, this video, prepare for the CT very well, get the best colleges, and start hunting for your career. Start hunting for the goal or the uh, career
aspect or the whatever field you have decided to get into after pursuing of the law, ठीक है, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना सीखने को मिलेगा. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने जो डिसाइड किया है वही हो सकता है उससे डिफरेंट हो जाए, कुछ अलग हो जाए, उससे बेटर हो जाए, या उससे कुछ ना कुछ आप वे आउट निकाल ही लोगे. एट देन मैटर ये करता है कि हाउ डेस्परेटली यू वांट टू डू द थिंग, ये मैटर करता है. अगर आप करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली यू विल बी क्रैकिंग योर गोल एंड डेफिनेटली बिल्डिंग अप गुड करियर इन दी लॉ करियर. ओके, लॉ प्रोग्राम के अंदर. चलो, thank you, Rishikesh, coming and sharing your experience, and all the very best for your future. Thank you, sir. Thank you for the maneuver. You're welcome. Yeah.